Hello friends. So today we will discuss our next topic, that is the India-Russia defense relations. This topic is very important and has been asked in this year exam as question number 20, that we need to analyze India-Russia defense cooperation vis-a-vis the India-US defense cooperation, and which is more strategically important for India considering the peace and security of the India-Pacific region. So, if you want to understand this part, which some part I've already covered in my last lecture of Indo-Pacific region lecture, today we will discuss in detail about the Indo-Russia defense relations. So, as you know that Russia was called as Soviet Union before 1991, and after 1991 it was disintegrated. So, disintegration of Soviet Union occurred in 1991, and Russia, an independent country, has come, plus different countries have got independence. Actually, Russia was there, but different countries was part of Soviet Union, and these countries have got independence. So, so we will actually analyze this question in two sense. What is the relation before 1991 and after 1991? So actually, India-Russia defense relations before 1991 was very strong, because India has got purely centrally dependent on Soviet Union only for its military and arms supplies. Okay, तो केवल रशिया पे डिपेंडेंट था इंडिया. There was no other alternative for India to buy arms and ammunition from other countries. India was so you can write like in this, that before 1991 India was solely dependent on Soviet Union. ठीक है. But after 1991, because there were because of many issues which we'll discuss later in the lecture, because of many issues, India has diversified its military technology from different countries. Like India is diversified to buy technology from US, from Israel, from France. ठीक है. And US, Israel. So US is so Russia is 60% around, Israel is 15, France 12%, US. So this is like this. Okay, so these are the prominent countries. From here, India has diversified, and today this is the ratio, that India is buying 60%. So previously it was 100%. India is buying military equipments. और अभी ये कम हो गया है. अभी 60%, 7%, 15%, 12%. तो सेकंड पे इजराइल है, थर्ड पे फ्रांस है, एंड सब्सिक्वेंटली दी अदर कंट्रीज, यूएस. ठीक है, दीज आर दी प्रोमिनेंट कंट्रीज. ठीक है, और उसके अलावा तो यही था. ठीक है, सो विल राइट इन पॉइंट्स बिफोर 1991. सो बिफोर 1991, ठीक है ना, एक तो 100% डिपेंडेंट ऑन सोवियत यूनियन, रशिया यू कैन से. सेकेंड, और जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल था रिलेशंस का, वो था ठीक है. तो सेकंड पॉइंट इज कि इंडिया एंड रशिया जो थे, सो देयर एंगेजमेंट विद ईच अदर बिफोर 1991 was is was not commercial and less commercial. So it was less commercial and more strategic and security oriented, or you can say oriented. तो बेसिकली क्या था कि जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस थे वो कवर करता था ये. स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेड था. स्ट्रेटेजिक मतलब
दोनों कंट्रीज आपस में मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेसिकली एक इक्वल स्ट्रेटेजिक एंड स्ट्रेटेजिक होता है कि बोथ आर ऑन इक्वल फुटिंग, एक फ्रेंडशिप वे में दे आर एंगेजिंग विद ईच अदर। कमर्शियल नहीं है कि एक बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं था, सेलर एंड बायर रिलेशनशिप नहीं था, बट एक फ्रेंडली रिलेशन था एंड एक इक्वल फुटिंग वाला रिलेशनशिप था, जिसमें दोनों स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेट करते थे, एंगेज होते थे एक दूसरे के साथ, ताकि both countries can deter their enemies or can engage with each other, engage कर सकते हैं और and can play a strong role, मतलब दूसरी कंट्रीज को they can send a message that they are together। तो मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि इनका 1950 से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, पहले भी था बट स्ट्रेंथन जो हुआ था 1950s 1960s और इवन 1970s में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। इवन 1971 में सो दे बोथ हैड साइंड अ ट्रीटी दैट इज द इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, सो लाइक दिस फ्रेंडशिप, सो दिस ट्रीटी दे हैव साइंड। सो इसमें क्या था ना, इसमें काफी सारे फ्रेंडशिप रिलेटेड ऐसे एंगेजमेंट्स थी कि किस किस एरिया में एंगेज करेंगे एंड हाउ विल दे विल स्ट्रेंथन देयर फ्रेंडशिप। तो डिफेंस पर्सपेक्टिव से इसमें एक था कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल इफ इंडिया इज देयर and Russia is there, so if any third party attacks India, so Russia at that point of time will engage with India to defeat that enemy. Similarly, if Russia has been attacked, India will interfere or India will participate with Russia to deter the enemy. So such is the strong relationship. So it was less commercial and more strategic, more partnership, you can say more partnership and security. So to bolster their security. So it was more strategic and security oriented rather than commercial. ठीक है। And third point, सो मिलिट्री था, मिलिट्री कोऑपरेशन करते थे वो आपस में, है ना, आर्म्स एंड इम्यूनिशन। इन एडिशन टू इट लाइसेंस का भी, तो लाइसेंस प्रोडक्शन भी होता था। लाइसेंस प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि बोथ कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर और वो जॉइंट प्रोडक्शन कर रही हैं, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है जॉइंट प्रोडक्शन, उस पे उनका जॉइंट लाइसेंस होगा। केवल रशिया का लाइसेंस नहीं होगा, इंडिया विल ऑल्सो गेट लाइसेंस। सो बोथ, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर jointly producing some tank, so both India Russia joint venture will get the license of that tank। तो लाइसेंस प्रोडक्शन होता था जो कि अपने आप में किसी और कंट्री के साथ इंडिया का नहीं होता था, वो पॉसिबल भी नहीं था। तो ये बहुत ज्यादा नहीं था बट लाइसेंस प्रोडक्शन भी इंडिया का रशिया के साथ था। तो मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ लाइसेंस प्रोडक्शन भी इंडिया एंड रशिया वाज देयर। ठीक है, अब ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्या क्या खरीदता था आपको मालूम है, इंडिया ने सबमरीन्स खरीदी है, सबमरीन्स मतलब सबमरीन खरीदी नहीं है बट सबमरीन में जो हमारी अरिहंत है, इसमें बहुत सारे रशियन इक्विपमेंट्स हैव बीन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दिस अरिहंत सबमरीन। रशिया के बहुत सारे इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, ठीक है ना। देन इंडिया ने क्या क्या खरीदा रशिया से, टैंक्स खरीदे हैं, आप जानते हैं ऐसे
T91S 90, sorry, T90, and T72. T90 M1, T72S है ना। इस टाइप के टैंक्स हैं जो इंडिया ने खरीदे हैं रशिया से। मिसाइल्स इंडिया ने रशिया से खरीदी हैं 1991 से पहले, बहुत मिसाइल्स खरीदी हैं इंडिया ने रशिया से। सो दे आर एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, है ना। देन मिग, सुखोई, MKI, so these fighter aircrafts, MiG-29K fighter aircraft, ठीक है ना। देन हेलीकॉप्टर्स, Mi-17, कालनोव 226, 16, सो के मतलब KALNOV, KALNOV, ये तो रिसेंट ही है तो उसको भी हटा देते हैं। Mi-17, ठीक है। और फ्रिगेट्स, INS विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। So India has got it renovated. No, it was previously called as Admiral Gorshkov. So that is the aircraft carrier which India has got repaired from Russia. Then we have INS Chakra submarine. India has taken on lease from Russia, INS Chakra submarine. And last but not the least, BrahMos, है ना, supersonic cruise missile. India has jointly co-developed with Russia. So main technologies of Russia, but it was a joint venture. So as you have seen, so India-Russia defense relations was very wide in terms of purchasing military equipments from Russia, so providing military equipment to our armed forces. और जो एयरक्राफ्ट्स हैं, मतलब इवन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, so you can say एयर डिफेंस सिस्टम। सो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा, जितनी भी हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, सो मोस्टली इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशिया। एयर डिफेंस सिस्टम जो भी हमारा आसमान में जो डिफेंस सिस्टम है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशिया, ठीक है। सो सच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफेंस रिलेशंस विद रशिया एक्चुअली बिफोर 1991, ठीक है। बिफोर 1991 की बात कर रहे हैं अभी हम। नाउ अभी क्या हुआ उसके बाद, मतलब ये तो चलो ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बट हम स्ट्रेटेजिकली और पॉइंट वाइज वैसे पढ़ते हैं कि भाई 1991 के बाद क्या हुआ। सो 1991 में क्या हुआ, आफ्टर 1991, ठीक है ना। आफ्टर 1991 में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन अकर्ड। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हैज बीन अकर्ड। और क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ऑब्वियसली बहुत ही पॉलिटिकल केओस के कारण, सोशल केओस के कारण, जो मिलिट्री हार्डवेयर जो इंडिया इज परचेजिंग फ्रॉम रशिया, दैट हैज बीन इम्पैक्टेड। इवन इशू क्या हुआ था उस टाइम, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया इज परचेज फ्रॉम रशिया, तो इसको हम क्रोनोलॉजिकली वी आर स्टडिंग, तो सिक्वेंशियली, तो जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया इज परचेज फ्रॉम रशिया, तो वो क्योंकि उसको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, सो इट रिक्वायर्स, सो इक्विपमेंट्स, मिलिट्री हार्डवेयर, so military hardware
रिक्वायर्स रिपेयर, है ना, रिपेयर चाहिए था उसको, और साथ में स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो रिपेयर चाहिए था, और कोई मान लीजिए चीज खराब हो गई, मान लीजिए गन के अंदर कोई पर्टिकुलर, एक गन के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज खराब हो गई, सो समथिंग गोज रॉन्ग विद द गन, सो स्पेयर पार्ट्स हैज बीन रिक्वायर्ड। अगर टैंक में हो गया, मिसाइल में हो गया, तो स्पेयर पार्ट चाहिए थे। तो एक तो रिपेयर करना है और स्पेयर पार्ट चाहिए थे। तो ये जो था, इट हैज बीन इम्पैक्टेड अलॉट। तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ डिसइंटीग्रेशन होने के बाद। And due to lack of supply of spare parts and due to lack of repair or and maintenance provided by the Russia, इंडिया को क्या करना पड़ा? इंडिया हैज टू एक्सपेंड इट्स डिफेंस बास्केट। डिफेंस बास्केट एक्सपेंड करनी पड़ी in terms of procuring military hardware from other countries as well, including Russia, but from other countries as well. So what are those other countries can be? They can be US, they can be Israel, they can be France, etc. etc. ठीक है ना? So because of this issue, India has started to expand its defense basket. ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जो 1971 में इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन की थी, रशिया के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया, वो 1993 में हैज गॉट रिन्यूड, वो रिन्यू होगी दोबारा। इंडिया एंड रशिया ने रिन्यू करी, बट रिन्यू हो गई, बट इट लैक्स दैट sharpness of it, of the, you know, of the magnitude of the relations, or the sharpness of the relations, it lacks that, because जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके माध्यम से कोई भी अगर कंट्री अटैक करती है तो दे बोथ विल कम टुगेदर एंड डिफीट दैट कंट्री। ठीक है, दोनों स्ट्रांगली मिलिटरीली कोऑपरेट करेंगे इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। बट ये जो क्लॉजेस थे, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे, that have got missing in this treaty which has got renewed in 1993। तो जो कि इम्पोर्टेंट ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स थी इनके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी और जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड पार्टनरशिप थी, that has been impacted a lot after 1991 because the treaty which was signed in 1993 doesn't contain those क्लॉजेज, एंड ड्यू टू दैट जो एक इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन था, एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड रिलेशन था विद रशिया, दैट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग और स्टार्टेड टू डिमिनिश, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आफ्टर 1991 में क्या इंडिया रशिया रिलेशंस ने क्या स्वरूप लिया, व्हाट फॉर्म इट हैज टेकन आफ्टर 1991। India-Russia relations which have got declined after 1991, वो 2000 में थोड़े संभले। They have got some support in 2000 when the bilateral India-Russia bilateral relations, ठीक है, they have got energized। वो कैसे energized हुए? After signing of, इन्होंने 2000 में एक you can say एक एग्रीमेंट साइन किया। सो दैट साइन एन एग्रीमेंट विच इज डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, which is called
शॉर्ट में, मुझे याद नहीं रहता बट मुझे DSC याद है, तो मैंने उसके से याद किया. सो दे हैव साइंड ए डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 2000. सो जो भी इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के बाद जो इम्पैक्ट हुआ था इन दोनों के रिलेशंस के बीच में, उसको वापस पटरी पे लाने का एक तरीका था, एक एग्रीमेंट इसलिए किया गया था ताकि उसको दोबारा से पटरी पे लाया जा सके. बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो पटरी पे लाया नहीं जा सका. वो हम देखते हैं क्यों नहीं लाया जा सका. इसके कई कारण हैं. एक तो मैं आपको एक चीज बता दूं, रशिया कई कंट्रीज को इंपोर्ट करता है, अपने एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री हार्डवेयर. तो अराउंड 25% तो इंडिया को करता है, मैक्सिमम तो इंडिया को करता ही है. मैं अभी का बता रहा हूं, 16% इट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना and 2 to 3% to Pakistan also. ये रशिया का अपना एक्सपोर्ट है. आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, इट एक्सपोर्ट्स 25% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, while 16% टू चाइना. तो बेसिकली क्या हुआ कि अब चाइना का आपको पता है, चाइना इज एक्चुअली मतलब कभी दोस्त नहीं रहा इंडिया का. इट वॉज नेवर अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, and it always plays a anti-India role in the global order, you can say. ठीक है ना? Whether it is Indo-Pacific region, it is you can say the border areas which India and China are a part of, the border areas of India and China. So both military as well as the continental area, continental part, China is showing its eyes towards India and try to show its might and aggression and try to bring India on back foot, and continentally also it is showing its aggression. So because of diversification of Russia's military hardware to China, and China being anti-India, so it is a great concern for India also. ठीक है ना, to continue its strategic as well as security defense equipment purchase from Russia, because it might happen that the same equipments which India is procuring, China also occupies those equipments. Plus it may also happen that the equipment which Russia is procuring from India, India is procuring from Russia, China may get the technology from Russia. ठीक है ना? मान लीजिए रशिया ने कोई एक मिसाइल दी इंडिया को, देते ही MiG-29 के. सो दीज आर एयरक्राफ्ट्स एक्चुअली, Mi-17, दे आर द हेलीकॉप्टर. मिसाइल, ब्रह्मोस है मिसाइल, उसके अलावा कोई भी मिसाइल दी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स करंटली, बट कोई भी मिसाइल दी. सो द मिसाइल टेक्नोलॉजी, चाइना में get the missile technology from Russia, because China is also a very important partner of Russia. ठीक है ना? और इसलिए भी important partner हो गया चाइना, because Russia being anti-US and China was also being anti-US. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दोनों दोस्त हो गए. So their relations, which was before 1991, was not a very strong relation. So Russia-China relations, strategic relations, have got strengthened after 1991, which was a great concern for India, and that is why, which is the most important reason, that is why India has diversified its defense purchases from other countries. That is the most important reason, actually. And plus Pakistan also. So Russia is also supplying equipment to Pakistan. सबमरीन सप्लाई कर रहा है, मिसाइल ये एयरक्राफ्ट सप्लाई कर रहा है, हेलीकॉप्टर सप्लाई कर रहा है टू पाकिस्तान. सिमिलरली चाइना को भी. तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंडिया इज डाइवर्सिफाइड इट्स
military purchase from Russia. ठीक है। अभी आपको पता है कि आजकल एक आज अभी भी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट रशिया स्टिल इज इज दी, जैसे हम बोलते हैं ऑल वेदर फ्रेंड। तो रशिया स्टिल इज एन ऑल वेदर फ्रेंड फॉर इंडिया। इंडिया कैन स्टिल रिलाई अपॉन रशिया, यू नो, इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज पहले जो इंडिया एंड रशिया का जो रिलेशनशिप था, डेफिनेटली इट वाज मोर यू कैन से पार्टनरशिप ऑन एन इक्वल फुटिंग। लेकिन अभी काफी इंडिया एंड रशिया दे आर जॉइंट वेंचरिंग विद ईच अदर। अभी जैसे पहले इंडिया खरीदता था रशिया से और रशिया पे डिपेंडेंट होता था फॉर फॉर रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टू प्रोवाइड दी स्पेयर पार्ट्स, अभी जॉइंट वेंचरिंग, जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है। तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया है, स्टिल जो मेक इन इंडिया है उसमें यूएस से ज्यादा इंडिया स्टिल रिलाई अपॉन रशिया। या आप यूएस से कंपेयर करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि स्टिल जो मेक इन इंडिया है, जिसमें इंडिया क्या इन्विसाज कर रहा है टू jointly to bring the technology in India and so that India can produce its own equipments and hardware for supplies to its armed forces. तो India and Russia are jointly venturing on many fronts. तो अभी कैसे, जो KA-226 हेलीकॉप्टर्स है, विच इज कैलनॉफ 226 हेलीकॉप्टर्स, तो इन्होंने जॉइंटली वेंचर एक बनाया है जो कि ये इसमें काफी कुछ जॉइंट प्रोडक्शन ये करेंगे। और इवन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हो रहा है, इंडिया कैन रिलाई अपॉन रशिया मोर कंपेयर टू यूएस। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है कि जो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर इंडिया को साथ में हो इक्विपमेंट्स के साथ। उसके अलावा राइफल्स का कुछ प्रोडक्शन चल रहा है इन अमेठी, है ना। अमेठी में इन्होंने जॉइंट एक वेंचर है इनका, जहाँ पे राइफल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जॉइंट। ठीक है। सो इनका जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, सो राइफल नेम इज AK-203 राइफल इन अमेठी। सो दे आर joint venturing with each other to manufacturing this rifle. In along with that जो इनका इंदिरा एक्सरसाइज है, इंदिरा नेवल एक्सरसाइज, ये एनुअल एक्सरसाइज है जहाँ पे ये बेसिकली इंडिया एंड रशिया actually they both together participate and demonstrate and get exercise में they participate with each other in showcasing their technologies like military technology, missile firing technology, cruise technology and all those things. So just a minute. So Indra is there. ठीक है। along with that Indian armed forces are getting trained in Russian institutions, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के जो रशिया के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सो इंडियन आर्म फोर्सेस आर गेटिंग ट्रेनिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस। सही है। और प्लस इंडिया इज ऑल्सो साइंड अ डील टू परचेज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसके माध्यम से ये इंडिया जो है कोई भी मिसाइल अगर अटैक करती है, एयर टू एयर मिसाइल, तो इवन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो इंडिया कैन हिट द टारगेट विद दिस डिफेंस सिस्टम। इंडिया कैन हिट द टारगेट टू द पॉइंट ब्लैंक रेंज एंड कैन डिफेंस इट्स एयर एंड डिफेंड इट्स कंट्री। ठीक है। ठीक है, ये S-400 की बात हो गई। तो और K-226 मैंने बता ही दिया। एंड फ्रिगेट्स मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट प्रोडक्शन, सो जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट मैन्युफैक्चर, दे आर कोऑपरेटिंग मिलिट्री टेक्निकल। और जो इंडिया का मिलिट्री कमीशन है, सो मिलिट्री इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो इंडिया का है, इंडिया एंड रशिया का है, ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग कोऑपरेशन।
तो बेसिकली इसमें बेसिकली वो मिलिट्री टेक्निकली ऑपरेट करते हैं, टेक्निकली नो हाउ एक्सचेंज करना, टेक्निक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करना. सो ये regularly they hold meetings, this commission hold meetings, so Indian departments as well as Russian departments hold meeting, and they will they both used to discuss and transfer the technology. जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, टेक्निकल नो हाउ जो आपस में एक्सचेंज करना है, वो उसके माध्यम से किया जाता है. एंड एक्सचेंज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, इस कमीशन के माध्यम से. So so this commission also defense ministers of both the countries meet annually to discuss the status of ongoing projects and other issues of military technical cooperation. So this military technical cooperation has been the most successful in the joint production of ब्रह्मोस मिसाइल का जॉइंट प्रोडक्शन किया है इसके माध्यम से. ये मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन का जो इन्होंने कमीशन बनाया है, जिसके माध्यम से ये डिस्कस करते हैं वेरियस इश्यूज जो भी आपस में अराइज होते हैं. उसके अलावा स्टेटस को रिव्यू करते हैं, मिलिट्री टेक्निकल नो हाउ एक्सचेंज करते हैं. इसके माध्यम से जॉइंट प्रोडक्शन सक्सेसफुल हुआ है. ब्रह्मोस टैंक्स का असेंबलिंग, एयरक्राफ्ट्स का, शिप एंटी शिप मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, रडार्स का, सबमरीन्स का. सबमरीन जैसे अरिहंत में बहुत सारे रशियन इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं सबमरीन में. तो कह सकते हैं कि स्टिल इन सब चीज़ों को हम देख के कह सकते हैं कि इंडिया कैन स्टिल रिलाई ऑन रशिया फॉर इट्स सक्सेसफुल मेक इन इंडिया, बिकॉज नाउ एक सेलर बाय रिलेशनशिप के अलावा के ना होते हुए, मतलब सेलर बाय रिलेशनशिप को जो एक जो दो कंट्रीज में होता है, बट इंडिया रशिया रिलेशनशिप can so it is joint venturing and joint production is there, and transfer of technology is there, so it is moreover a strategic partnership, and India can rely on Russia for transfer of technology and for its for the success of its Make in India program rather than on other countries. So still there are Russia and India still can strengthen their relationships, can still strengthen relationships, and just a minute. So there are many prospects where they can strengthen, but still India and Russia defense relationship we cannot ignore, or India-Russia defense relationships. So it has moved beyond buyer-seller relationship to that of joint collaboration. So you can say that India-Russia relationships can withstand the the changing times, and it has the potential to continue having a good relationships, and and the concerns of India in the Indian Ocean region, in the Indo-Pacific region. So it is Russia. So Russia can play a very important role in providing that security, confidence to India, in India. Okay, तो आप ये सब लिख सकते हैं India-Russia relationships के बारे में. In the next lecture, we will discuss the India-US relationship, defense relationships.